आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। Mr. Suchita Chaudhary ma'am, Shri Uttamrao Anna Kamble sir, Shri Gyaneshwar Gulla sir, Director Dr. Kedar Rane sir, Secretary Shri Sachin Rane sir, Vice Principal of Junior College, Balkrishnan sir, College, Badak sir. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि जहां पर भी चेयर खाली है आप वहां पर विराजमान हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। A warm and cheerful morning to one and all present here. I Cadet Shifa Sheikh and I Cadet Yashashree Vaksore. I request you all to please put your hands together for our esteemed chief guest, Brigadier Prakash Chaudhary sir, Mrs. Suchita Chaudhary ma'am, Shri Uttamrao Anna Kamble sir, Shri Gyaneshwar Gulla sir, Director Dr. Kedar Rane sir, Secretary Shri Sachin Rane sir, Director of Girls Wing Urmila Rane ma'am, Chief Administrative Officer Uddhav Takle sir, Principal of Defence Career Academy School and Junior College Shri Shrikant Varude sir, Administrative Officer Rameshwar Rane sir, Vice Principal of Junior College Balkrishnan sir, Vice Principal of Defence Career Academy School and Junior College Badak sir. Nishan is honor and pride of Defence Career Academy since 2008 when हमारे हिंदुस्तान पर
Nishantoli includes Cadet Soham Ranade holding the flag, Cadet Sarvesh Sonavne on his left, Cadet Sarang Suryavanshi on his right. Now I request our Honorable Chief Guest, Brigadier Prakash Chaudhary. चल Janak. Start the anthem. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। Chief Guest Brigadier Prakash Chaudhary sir is moving towards the houses for parade inspection. Escorted by pilots, Cadet Anushka Nagdavne on right and Cadet Maithili Vabre on left, accompanied by Parade Commander, Academic Cadet Captain Shruti Shendge on his left. Yellow signifies the ambition of the rising sun. Walking the houses, everyone is an achiever.
में स्वर्ण अक्षरों से लिखित है, ऐसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर एकेडमिक कैडेट कैप्टन श्रुति शेंडगे। इस हाउस के हाउस मास्टर्स है सीएओ सूबेदार उद्धव डंगले सर, सूबेदार मेजर दत्तात्रेय सेजवान सर, नायब सूबेदार मोड़े सर, हवलदार हरसुल सर, हवलदार अष्टिकर सर। इस हाउस के हाउस कमांडर है कैडेट कैप्टन पुष्पक आहिरे, फ्लैग कमांडर कैडेट कैप्टन जिशान झांबरे, वाइस एकेडमिक कैडेट कैप्टन विनीत पेडनेकर। सावित्रीबाई फुले सुगन का नाम भारत की प्रथम महिला शिक्षक, समाज सुधारक और समाज को सनातन संस्कृति से परिचित कराने वाली सावित्रीबाई के नाम पर रखा गया है। इस हाउस के हाउस गर्ल्स मिस पायल चाणक मैम, मिस सुषमा सिंह मैम, मिस ऋतुजा राजपूत मैम, मिस मयूरी जाधव मैम। कैडेट कैप्टन उन्नति भावे और मैंने कैडेट गुंजन जैसा।
Independence Day. Let us make a promise that we will not leave the hard sacrifices of our brave freedom fighters go in vain. We would work hard to make our country best in the world. India, a land so vast. Independence Day is finally here at last. With joy and pride, we all unite. To celebrate our nation's smile, our tricolor flag flies so high, symbolizing freedom reaching high seas. Let's honor our heroes, brave and true, and strive to make our dreams come true. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है. सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है. Cadets will take 14 steps ahead to show their perfect coordination and discipline. What a spectacular formation! Shruti Shenge is moving towards the podium for seeking permission for dispersal of the parade. Permission has been granted by the chief guest.
Wow, it was a unique formation. Thank you, Cadet Sanskruti and Cadet Sanvi. Now, this is the time to felicitate our honorable chief guest by giving them a bouquet as a token of love and respect. I welcome our Honorable Director Dr. Kedar Rane sir to welcome our Honorable Chief Guest Brigadier Prakash Chaudhary sir by giving a bouquet and memento. I welcome our respected Director of Girls Wing, Miss Urmila Rahane ma'am, to felicitate Miss Suchita Chaudhary ma'am. I invite our Honorable Chief Administrative Officer Uddhav Takle sir to welcome our Trustee Uttam Rao Anna Kamble sir. I invite the Senior Academic Cadet Captain Vedant Chauhan to introduce our Chief Guest Brigadier Prakash Chaudhary sir. Jai Hind to one and all present here. I, Senior Academic Cadet Captain Vedant Devdas Chauhan, filled with pride as I got this opportunity to introduce our esteemed chief guest, Honorable Brigadier Prakash Chaudhary sir. He was born on 14th December 1958 in Khirra, Jalgaon district. He is from a very humble background and had his primary studies from Jilla Parishad School of the village. He studied at Sainik School Satara from 1968 to 1975. Thereafter, he joined the COEP Pune but soon left it to join the National Defence Academy. After training at NDA and Indian Military Academy, Dehradun, he was commissioned as Second Lieutenant in 1980 in Artillery branch of the Army. He later joined the Aviation branch of the Army too. Thus, he had the distinction of serving in artillery as well as Army Aviation. He commanded Artillery Regiment in Kargil, Aviation Squadron at Jammu and Artillery Brigades at Tezpur and Amritsar. He was Chief Flying Instructor at Combat Army Aviation School, Nashik from 2006 to 2008. During his operational posting, he has flown all over the country while serving in Leh, Srinagar, Jammu and Nagaland. He was instrumental in evacuation a huge number of casualties and saving precious lives of our soldiers. His 32 years of great service to the nation was full of challenges. Out of this, he served 13 years in Jammu and Kashmir and 11 years in Northeast India. After retirement, he joined the Pawan Hans helicopters and flew in Andaman and Nicobar, Lakshadweep and Northeast India. During COVID, he had evacuated many patients in Andaman and Lakshadweep Islands and saved many civil lives. I am truly filled with reverence to introduce our esteemed chief guest, Honorable Brigadier Prakash Chaudhary sir, to this auspicious occasion of 79th Independence Day. Thank you. Jai Hind. I, Senior Academic Cadet Captain Purva Shahane, am honored to have been given this opportunity to introduce the wind beneath the wings of Brigadier Prakash Chaudhary sir, Mrs. Suchita Chaudhary ma'am. Mrs. Suchita ma'am hails from the city of Nagpur, where she completed her studies from Bishop College. Mrs. Suchita ma'am's career record runs parallel across the postings of Brigadier Prakash Chaudhary sir. Together, they traversed across the length and breadth of the country, making their valuable contribution towards nation building. Mrs. Suchita ma'am has an impeccable record in pedagogy as she has taught students across the spectrums of geography, culture and background. She has actively supported and advocated for welfare of family units. The family of defense forces come with the challenges unbeknownst
to the general populace, understanding the sensitivity of it and being informed from her own experience, she has taken initiative of counseling the families. Mrs. Suchita ma'am has an exemplified a commendable life lived with purpose in service. Thank you. धगधगत्या सूर्याला जन्म तू दिलास, धगधगत्या सूर्याला जन्म तू दिलास, अन्यायाचा अंधार त्यांनी हटविला. महाराष्ट्र भूमीत जिजाऊने असा पुत्र घडवला, महाराष्ट्र भूमीत जिजाऊने असा पुत्र घडवला, सह्याद्रीच्या छातडासारखा कणखर शूरवीर राजाला जन्म दिलास. महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये रोवलेली पहार काढून ज्या माऊलीने गुलामगिरीच्या छाताडावर प्रहार केला त्या राजमाता जिजाऊ. Here, I invite Sheikh sir for announcing the Jijau Mata Puraskar. वरदवंत कीर्तिवंत गुणवंत पुण्यवंत जयवंत जाणता राजा या भूमंडळाचे ठाई धर्म रक्षैसा नाही आणि महाराष्ट्र धर्म उरला काही तुम्हा कारणे. मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. शिवछत्रपतींच्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये ज्या शिवछत्रपतींना हे राज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा या महाराष्ट्रामध्ये आज जर अभिमानानं आपण उभे असो तर त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आणि त्या महाराजांना घडवणारी राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ या जिजाऊंच्या नावानं संस्था राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ पुरस्कार प्रदान करत आहे. आजचे प्रमुख अतिथी माननीय ब्रिगेडियर प्रकाश चौधरी सर, आपणास विनंती आहे की राजमाता पुरस्कार आपल्या हस्ते प्रदान करण्यात येत आहे. पुरस्कारांचे नामांकित कॅडेट्स आहेत ज्यांचं नाव मी आता घेतोय. आज थोडासा पावसानं दा आणि असं जरी असलं तरी आपण ड्रिल पण चांगल्या प्रकारे केलेली आहे आणि पुढचा पुरस्कार राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ पुरस्कार आपण प्रदान करतोय. पहिले कॅडेट्स आहेत अनुष्का महेश जाधव आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत आरती महेश जाधव. आरती महेश जाधव NDA क्वालिफाय, SSB क्वालिफाय. आरती, खरंच तुझा आम्हाला अभिमान आहे. एअरफोर्स मध्ये सिलेक्शन. पुरस्काराच्या रूपामध्ये मोमेंटो, पुष्पगुच्छ आणि 25,000चा धनादेश प्रदान करण्यात येत आहे. त्यानंतर पुढचे कॅडेट्स आहेत जय संतोष साके आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत वैशाली संतोष साके. जय साके अतिशय हुशार विद्यार्थी, NDA क्वालिफाय. राजमाता पुरस्कारासाठी मी मंचावर आमंत्रित करतोय वृषाली संतोष साके. मोमेंटो आणि चेक प्रदान करण्यात येत आहे. धन्यवाद अनुष्का. पुढचा कॅडेट्स जय साके आणि राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ पुरस्कार वृषाली संतोष साके. NDA क्वालिफाय, मोमेंटो आणि चेक. त्यानंतर पुढचा कॅडेट आहे हर्षल अनिल मस्के आणि राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ पुरस्काराच्या मानकरी आहेत सपना अनिल मस्के. हर्षल अतिशय बुद्धिमान, NDA एक्झाम क्वालिफाय. संस्थेच्या वतीनं मोमेंटो, पुष्पगुच्छ आणि 25,000चा धनादेश देण्यात येत आहे. हर्षल अनिल मस्के.
त्यानंतर पुढचा कॅडेट्स आहे हर्ष श्याम सुंदर बिडवई आणि राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ पुरस्काराच्या मानकरी आहेत नीलम श्याम सुंदर बिडवई. हर्ष अतिशय बुद्धिमान, अतिशय हुशार, NDA क्वालिफाय. संस्थेच्या वतीनं 25,000चा धनादेश, पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह म्हणून मोमेंटो देण्यात येत आहे. त्यानंतर पुढचे कॅडेट्स आहेत गौरव दत्तात्रय सीताफळे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत उषा दत्तात्रय सीताफळे. गौरवनं SSR क्वालिफाय केलंय. सिनियर सेकंडरी रिक्रुटमेंटमध्ये त्याचं निवड झालेली आहे. तर मातोश्रींना मी विनंती करतो की मंचावर यायचे. उषा दत्तात्रय सीताफळे. त्यानंतर पुढचा कॅडेट्स आहे आदित्य रतन रहाते आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत पुष्पाली रतन रहाते. या विद्यार्थ्याचं अग्निवीर मध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे. तो आता आमच्याकडे 12वी मध्ये शिकतोय. आता तो शिक्षण घेतोय. शिक्षण घेत असताना त्याचं सिलेक्शन झालेलं आहे. पुरस्काराच्या मानकरी आहेत पुष्पाली रतन रहाते. त्यानंतर पुढचा कॅडेट्स आरुष महेश परचुरे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत मृण्मयी महेश परचुरे. IMU CET मध्ये हा क्वालिफाय झालेला आहे. आरुष महेश परचुरे आणि पुरस्काराचे मानकरी आहेत मृण्मयी महेश परचुरे. त्यानंतर पुढचा कॅडेट्स आहे कार्तिक विहान रेड्डी येरुवा आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत गोवर्धिनी येरुवा. IMU CET मध्ये हा क्वालिफाय आहे. कार्तिक विहान रेड्डी येरुवा आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत गोवर्धनी येरुवा. IMU CET क्वालिफाय. त्यानंतर पुढचा कॅडेट्स जसमुद्दीन कुतुबुद्दीन थोरवे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत मदीना थोरवे. IMU CET क्वालिफाय. जसमुद्दीन कुतुबुद्दीन थोरवे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत मदीना थोरवे. IMU CET क्वालिफाय जसमुद्दीन थोरवे. पुढचा कॅडेट आहे प्रल्हाद सोपान भोसले आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत रंजना सोपान भोसले. IMU CET उत्तीर्ण भोसले, अभिनंदन. प्रल्हाद सोपान भोसले आणि पुरस्काराच्या मानकरी रंजना सोपान भोसले. पुढचा कॅडेट्स जयेश सुरेश पुजारी आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत कविता देवीदास महानुभान. AIFSCT ऑल इंडिया फॉरेन्सिक सायन्स एंट्रन्स टेस्ट यामध्ये हा विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेला आहे जयेश सुरेश पुजारी आणि राजमाता जिजाऊ पुरस्काराच्या मानकरी कविता देवीदास महानुभान. पुढचा कॅडेट आहे करण भीमराव चेंडकापुरे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत
अरुणा भीमराव चंदकापुरे. चंदकापुरे JEE मेन क्वालिफाय. करण भीमराव चंदकापुरे आणि राजमाता पुरस्काराच्या मानकरी आहेत अरुणा भीमराव चंदकापुरे, JEE मेन क्वालिफाय. त्यानंतर शेवटचा कंटेस्टंट श्लोक भूपेश जाधव. श्लोक भूपेश जाधव आणि राजमाता पुरस्काराची मानकरी रंजना भूपेश जाधव. रंजना भूपेश जाधव. श्लोक जाधव. नेहमी श्रेष्ठ माता असते, नेहमी श्रेष्ठ माता असते आणि मातृभूमी स्वराज्याचे तोरण बांधून शिवबांनी दिली हमी. नेहमी श्रेष्ठ माता असते आणि मातृभूमी स्वराज्याचे तोरण बांधून शिवबांनी दिली हमी. तुमच्या कार्याची थोरवी सर्वांनी गायली पाहिजे, तुमच्या कार्याची थोरवी सर्वांनी गायली पाहिजे आणि आमच्या माता भगिनींनी सुद्धा जिजाऊ व्हायला पाहिजे, जिजाऊ व्हायला पाहिजे. धन्यवाद. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि थांबतो. Thank you, Sheikh sir. The life is incomplete without sports. It is the time to refresh our mind. So play as much you can. I heartily welcome our respected HOD of Sports Department, Nilesh Mane sir, to share his sports achievements with all of us. Welcoming you, sir. Thank you. A very good morning everyone present here. Respected chief guest, all the dignitaries, parents and my dear cadets. I, HOD of Sport Department, Nilesh Mane, welcome you all on this 79th Independence Day. I am standing in front of you to announce the achievement of our Sport Department in this year. Our 122 cadet participated at CPSC zonal level. Out of that, we achieved 6 gold, 8 silver, 12 bronze in this competition. Our 14 cadet qualified for national level. So I request our chief guest and all the dignitaries to congratulate the cadet by giving the trophy. Here I announce with the South Zone 2 gold medalist, Cadet Soumya Duse, Cadet Ayush Banjara, Cadet Shivansh Pandey, Cadet Arnav Kade and Alia Khan. CPSC South Zone 2 boxing head at Bhandara Lakmi. DCA ने बॉक्सिंग में हैट्रिक चैंपियनशिप के साथ की है और 13 बॉक्सर्स नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए. सभी खिलाड़ियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए. आने वाले खिलाड़ी सिल्वर मेडलिस्ट कैडेट प्रिंस मेशराम, कैडेट शौर्यराज वाबले, आद्विक नंदेश्वर, आयुष बंगेरा, अद्वैत गावड़े, सौरभ शौर्य सेठ. सिल्वर मेडलिस्ट कैडेट प्रिंस मेशराम, शौर्यराज वाबले, आद्विक नंदेश्वर, आयुष बंगेरा, सौरभ शौर्य सेठ and Astha Thakur. Cadet Astha Thakur, silver medalist, qualifying for national level CBSE games, which is going to head at Haryana Mahendragarh. Cadet Astha Hemant Thakur, silver medalist. Now from the bronze medalist, Cadet Purva Ramesh Bharate, Akshita Jaiswal, Manvi Savle, Nitya Kanvur. Last year national athlete Purva and Akshita. From the bronze medalist Abhimanyu Dhamal, Yash Chavan, Aryan Wagmare, Arpit Mahale and Parth Kulkarni. सभी ने बॉक्सिंग में जी जान लगा के मेहनत किया और डीसी को तीसरी बार साउथ जोन 2, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इन तीनों राज्यों में चैंपियनशिप ट्रॉफी डीसी ने हासिल की है. Now from Taekwondo CBSE game held at Pune. The gold medalist Cadet Akanshi Bhujang,
She deserved to qualify for national and she had done with his hard work. From Taekwondo, Akanshi Bhujang, gold medalist in under 19 category and qualified for Taekwondo national CBSE game which is going to head at Varanasi. आकांक्षी बेहतरीन खिलाड़ी है, साथ में एक एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है उसका प्रोग्रेस. ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम ताइक्वांडो, कैडेट रिद्धि पंचोली, कैडेट नेहा शिंदे, कैडेट अनुष्का कलेस्कर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो गेम. नेक्स्ट गेम हॉकी. कल ही हॉकी कोल्हापुर से लौटी आज सुबह मॉर्निंग में और डीसीए ने पहली बार हॉकी में पार्टिसिपेट किया था सीबीएसई गेम में और ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारी टीम यहां पे वापस लौटी है. इस टीम के कैप्टन है हॉकी टीम के अर्जुन शिबे, कैडेट कैप्टन अर्जुन शिबे, हॉकी टीम के सार्थक गायकवाड़. मैं पूरी टीम को बुलाना चाहता हूं. ओम कडू, वीर भोसले, अथर्व गोंडे, आलोक खैरनार, शौर्य जादव, आयुष आचरे, रघुवीर शिंदे. रघुवीर awarded as the best goalkeeper for under 17 CBSE game in hockey tournament. रघुवीर शिंदे, साहिल जादव, श्रेयस फुलाटे, शिवम तारामले, आर्यन लादे एंड कैडेट युवराज देशमुख. इस टीम के कोच सैयद नुमान सर. डीसीए का टीम का इतिहास है. नेहरू हॉकी टीम में पिछले 4 साल से डीसीए स्टेट लेवल क्वालिफाई हो रही है और आगे भी होती रहेंगी. हॉकी इज आवर नेशनल गेम. हमारा स्लोगन है डीसीए इज अ बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग इज अ डीसीए. आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे टीम लौटी है कोल्हापुर से. पहली मैच इन्होंने 6-1 से जीती थी कर्नाटक के स्कूल के साथ. दूसरी मैच 3-1 से जीती थी और पेनल्टी शूटआउट में 1 पॉइंट से हम लोग लॉस हुए 1 गोल से और 3rd प्लेस वहां पे हासिल हुआ. कैडेट रघुवीर शिंदे अवार्डेड एज अ बेस्ट गोलकीपर इन अंडर 17 हॉकी फॉर इंटर स्कूल सीबीएसई गेम्स. थैंक यू डियर कैडेट्स. अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले 26 जनवरी तक इससे भी बड़ी लाइन रहेगी. आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू आवर चीफ गेस्ट फॉर फेलिसिटिंग आवर अचीवर्स. आई एक्सटेंडेड माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, secretary sir and CEO sir for always motivating our players and encouraging them to achieve the best. I also want to thank all the parents for your support. Thank you. Jai Hind. Congratulations all the cadet at sport department. Thank you Mane sir. I humbly request our honorable chief guest Brigadier Prakash Chaudhary sir to express his words, valuable words. Dr. Kedar Rahane, Director DCA, members of the trust, proud parents and my dear young, bright and cheerful students. Jai Hind. और जोर से जय हिंद. That's good. It's my honor and proud privilege to be here amongst you all on this momentous occasion of our 79th Independence Day. Today is the day when we pay our solemn tribute to our freedom fighters who not only gave their comforts, their family life, their families, but also their lives only to ensure that their future generations, that is we all, live in a free country. But after 79 years, we must ponder, are we really free? There are still many social evils that are existing amongst us all.
evils like corruption, illiteracy, indiscipline, and so many others. And we look up to you, the youth of India, to eradicate them so that by 2047, when our Prime Minister says that we would be a developed country, and we truly will be a developed country if you take this task, if you take on this responsibility of eradicating all these social ills that are existing amongst us now. You know, there is a saying, when the going gets tough, the tough gets going. And today morning was a true example of this. You know, we were debating whether there will be parade or not. But it was you students who made the management ensure that the parade is conducted irrespective of whatever is the ground condition. That is the spirit, and that is the spirit in which you must march on in your life. I am truly very, very impressed seeing your standards of the parade, your turnout, your dressing, your timing. Everything was so immaculate. I must congratulate the parade commander Shruti and the Nishan Toli for the excellent drill they showed. You know, when we were in NDA, we used to do cane drill, sword drill only in our 6th term. But here I am seeing boys and girls of 11th standard doing all this drill. It's really amazing to see you all. The parade was excellent, but I know that the efforts that have been put in by your drill IC, Shezwal Saab, and his team of drill instructors. I mean, I can imagine the efforts they have put in to ensure that you are marching this way. Saab, kahan ho aap? बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश. Very well done. Very well done. The director briefed me on the various facilities that are existing in the schools. In fact, you have got everything that a good school requires. Everything that will push you up through these formative years of 11th and 12th year to become something responsible, to seek a good career wherever you choose to. You are indeed very lucky, and for that you must remember the compromises, the sacrifices that must have been made. Okay, so I was saying that for sending you to such a beautiful school, your parents must have made so many compromises to send you here. और आपको उनकी जो इच्छाएं है उसको पूरा करके दिखाना है. उन्होंने आपको यहाँ भेजा है कुछ, ताकि आप कुछ बन के दिखाओ. और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको यहाँ देखते हुए कि आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे उनकी ये अभिलाषा पूरी करने में. जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके फॉर्मेटिव ईयर्स है. फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब यहाँ जैसे कुंभार अपने घड़े को गढ़ता है, वैसे आप इधर गढ़ रहे हो. और आप कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैसे आप काम करोगे, कितना हार्ड वर्क करोगे. आपको यहाँ पे अपनी जो नींव होती है, अपनी जो फाउंडेशन होती है, वो स्ट्रांग बनानी है. और फाउंडेशन बनती है आपके एटीट्यूड से,
आपके कैरेक्टर से, आपके संस्कारों से। और इन सब को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कई सालों बाद ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वैसे ही अगर हम अच्छी आदतों में, गुड हैबिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आने वाला जीवन है उसमें आपको बहुत आसानी होगी, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाओ। ओके, तो अच्छी आदतें क्या होती है? अच्छी आदतें होते हैं कि जैसे कि बीइंग डिसिप्लिन्ड, बीइंग पंक्चुअल, गेटिंग अप अर्ली एवरी डे, डूइंग एक्सरसाइजेस डेली, किसी को हर रोज मदद करना, हर रोज ग्रैटिट्यूड पे करना, कोई हर रोज अच्छी किताब पढ़ना, और किताबें भी ऐसी पढ़ना जिससे कि आपको कुछ सीख मिले। जैसे बायोग्राफीज है, शिवाजी महाराज की बायोग्राफी, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, फील्ड मार्शल माणिक शॉ, अपने एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। क्योंकि ये पढ़ने से आपको ये ज्ञात होता है कि इन्होंने ये कैसे संघर्ष से पार करके जो भी अपना मुकाम है उस पर पहुंचे हैं। और ये सब करने में आपको कठोर परिश्रम करना तो पड़ेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि उसका किस्मत अच्छा था इसलिए वो एनडीए ज्वाइन कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वो फेमस साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते थे कि जितना मैं कठिन परिश्रम करता हूं उतना ही मैं लकी होते जाता हूं। तो यही बात ध्यान में रखना है। अगर आप लक के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप कठोर परिश्रम करो, आप अपने आप लकी बनते जाएंगे। और आपके स्कूल का मोटो भी वही है, डिटर्मिनेशन अचीव्स योर गोल फर्मली। ये क्लियरली दर्शाता है कि का मोटो है, ये आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने में प्रोत्साहित करता है। और मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सक्सेस जो होता है उसमें 10% इंस्पिरेशन होता है और 90% परस्पिरेशन होता है। परस्पिरेशन मतलब हार्ड वर्क। बट आप ये बोलते होंगे कि हम तो हार्ड वर्क करते हैं, इधर मैं क्लासेस अटेंड करता हूं, स्टडी पीरियड में पढ़ाई करता हूं, लेकिन हार्ड वर्क का मतलब ये सब करना नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब है कि आपका स्टडी पीरियड हुआ, बाकी लोग रेस्ट करने गए, लेकिन आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई में लगा रहे हो। बाकी लोग अपने स्पेयर टाइम में टीवी देख रहे हैं, लेकिन आप कोई अच्छा किताब पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं बताया। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। तो अगर आप असल में हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं तो इन चीजों को फॉलो करते रहना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं किसी चीज में अपेयर नहीं होना चाहता हूं क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि हमेशा सिर्फ सक्सेसफुल ही रहा हो। आपको फेलियर्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर्स, क्योंकि सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है। फेलियर सक्सेस की एक फर्स्ट स्टेप है, पहली पायदान है। क्योंकि जब आप फेलियर एनकाउंटर करते हो तभी आपको यह पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्या कर सकता हूं, क्या। और फिर जब आप और अटेम्प्ट करोगे तो आप उससे भी अच्छे एफर्ट्स के साथ सक्सेसफुल होंगे। फेलियर तब होता है जब आप बिल्कुल ट्राई करना ही छोड़ देते हो, और ऐसी नौबत कभी आनी नहीं चाहिए। और जैसा मैं आज सुबह देखा कि आपका जो नेवर डाई एटीट्यूड है, तो इसी एटीट्यूड से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप फेलियर्स को भी आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं और बाउंस बैक करना है एडेड स्ट्रेंथ के साथ। अगर आप देखोगे कि जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज है
इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी देखो आप, उन सब ने फेल्योर्स का सामना किया है। अमिताभ बच्चन को देखो, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था उसकी आवाज के लिए, और आज उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जो अपने एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहा। अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो ये नहीं कि वो वैसे ही बैठे रहे, उसके बावजूद फिर वो अपने कंट्री के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने। और यहां तो आपके सामने एक लाइव उदाहरण है आपके डायरेक्टर के रूप में। अगर आप उनका भी जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो ये मालूम होगा कि उन्होंने भी कितनी अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते करते यहां तक पहुंचे हैं, और अभी भी कोई स्मूथ रनिंग नहीं है। जो वो चीज हासिल नहीं कर पाए, उन्होंने ये अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मैं औरंगाबाद और आसपास के आसपास के परिसर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा, और उसी का रूप है ये इंस्टीट्यूट। तो आपको भी उससे प्रेरित होके अपना काम करते रहना है, अपने एफर्ट्स डालते रहना है। डीसीए का जो ट्रेनिंग है वो फोकस्ड है, आप सर्विस बैकग्राउंड रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। कई लोग सोचते हैं कि ये तो मेरी काबिलियत के बाहर है, मैं नहीं कर सकता हूं इसको। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता और अगर आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, दोनों बिल्कुल बराबर है। यह सिर्फ निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मुझे करना है, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे एक्शंस, आपका दिमाग है आपके बॉडी को वैसे एक्शंस करने पर मजबूर करता है। तो हमेशा आपका एटीट्यूड ऐसे ही रहना है कि आई कैन। बट इसके बावजूद जो भी प्रोफेशन आप ज्वाइन करोगे, डीसीए ने आपको इतने मजबूत पंख दिए हैं कि जो भी करियर आप चूज करोगे, किसी भी वजह से जो भी करियर आप चूज करोगे, आप उस करियर में अच्छा काम करके दिखाओगे। और मैं अपने ओन एग्जाम्पल से बता सकता हूं, हमारे भी स्कूल में सबको ज्वाइन करना था एनडीए, लेकिन सारे लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट डॉक्टर बना, कोई सरपंच बना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, और जो नींव उस समय हमने अपने लिए बनाई थी, उसकी बदौलत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं विविध स्पीयर्स में। और जैसे मैं पहले भी बताया कि ये जो युवा शक्ति है, ये अपने देश की ताकत है। और क्योंकि हम आप में देखते हैं फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर मिलिट्री जनरल्स, मार्शल्स, एडमिरल्स, आपको सिर्फ अपनी सबसे अच्छी कोशिश करते रहना है, और अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अंत में I would like to thank Dr. Kedar Rahane for inviting me here, giving me this opportunity to see this great institute and to meet you all, and above all to see your spirit personally. और मैं अभी जहां भी जाऊंगा मैं यही सबको एग्जाम्पल देते रहूंगा कि डीसीए ने ऐसी परेड करके दिखाई, और शायद डीसीए के हिस्ट्री में भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और ये साल स्पेशल साल है क्योंकि इस साल 17 गर्ल कैडेट्स भी एनडीए से पास आउट हुई है, और ये डायरेक्टर के लिए तो है ही, लेकिन हमारे सबके लिए ये फक्र की बात है कि अपनी एक कैडेट है अनुष्का, वो भी एनडीए के लिए, उसने भी एसएसबी क्लियर किया हुआ है। वेरी वेल डन। कहाँ है अनुष्का? आई विल अर्ज यू टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स
बिकॉज एज आई सेड नथिंग इज इम्पॉसिबल, सिर्फ आपका विल होना चाहिए. एंड आई एम श्योर कि इन कमिंग ईयर्स, कम वेरी वेल डन. कि आप ऐसी ही कड़ी मेहनत लगन के साथ काम करते रहो. आप डेफिनेटली अपने आने वाले जीवन में सक्सेसफुल होंगे, अपना नाम रोशन करोगे, अपने नाम के साथ अपने पेरेंट्स का नाम, डिफेंस सर्विस एकेडमी का नाम रोशन करोगे. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल इन वॉट एवर परस्यूट्स यू फॉलो. जय हिंद, वंदे मातरम. Last but not least, we are going to conclude the event by giving vote of thanks. I invite our senior academic cadet captain Purva Shahane to propose vote of thanks. Jai Hind everyone. I, Senior Academic Cadet Captain Purva Shahane, will proceed as we conclude our Independence Day celebration. I feel honored to stand before you to extend a heartfelt vote of thanks. I would like to express my sincere gratitude for making this Independence Day remarkable. On behalf of Defence Career Academy, I express my sincere gratitude to our chief guest, Brigadier Prakash Chaudhary sir, who spared his precious time to grace this occasion with his presence. Sir, this is our immense pleasure to hear your thoughts, and this will surely encourage us in near future. Thank you, sir. I would also like to express my sincere gratitude to our trust for giving their valuable time. I also thank all the dignitaries, Director Dr. Kedar Rane sir, Director of Girls Wing Mrs. Urmila Rane ma'am, CAO Mr. Uddhav Takle sir, Secretary Sachin Rane sir, Vice Principal of Junior College Mrs. Balkrishnan sir, Mr. Balkrishnan sir. I extend my sincere thanks to all the educators for making this event a great success. I would like to extend my heartfelt thank to all the cadets who participated in today's event. Each one of you has displayed a deep sense of pride, patriotism and dedication. The hard work and efforts that you put into preparing for this day are truly commendable. You have made this day notable with your outstanding performance. I am honored to express my gratitude to the parents who are here with us today. Your presence shows your commitment to nurturing a spirit of patriotism in your child, and we are thankful for that. We are grateful for the trust and encouragement you put in us. Your continuous support and active involvement in our school activities help in shaping the success of such events. I extend my heartfelt thanks to our supporting staff, mess staff, transport staff, housekeeping staff and security department for always helping us and taking care of our needs. I am very thankful for you all for putting your efforts directly or indirectly for making this event a grand success. Thank you everyone. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब मेरे साथ ताली बजाकर जो बच्चों ने इतना अच्छा परेड दिखाया है उनके ऑनर में सब खड़े होकर मेरे साथ तालियां बजाने में शामिल हो जाए. Thank you so much, sir. Now, I announce the event is over. I request all the parents to please attend the parents meeting. For school department, the parents meeting will be in the classrooms. Again, I repeat, for the school department from Defence Career Academy School and Junior College, the parents meeting will be in the respective classrooms. For Junior College, the parents meeting will be on the first floor, and for Girls Wing, the parents meeting will be in 3 Shakti Hall.
वंस अगेन आई रिपीट, पेरेंट्स मीटिंग के लिए सभी पेरेंट्स स्कूल सेक्शन के डिफेंस करियर एकेडमी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 5th to 10th बच्चों की क्लासरूम्स में पेरेंट्स मीटिंग होगी। जूनियर कॉलेज 1st फ्लोर पे पेरेंट्स मीटिंग होगी और गर्ल्स विंग के लिए नीचे त्रिशक्ति हॉल में पेरेंट्स मीटिंग होगी। थैंक यू सो मच। All the teachers, I request all the teachers, all the staff members, please be on their classes. देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों। नमस्कार, मी महेश परचुरे। माझा मुलगा आरुष डिफेन्स करियर अकॅडमी मधून 12वी उत्तीर्ण झाला 2025 मध्ये। डिफेन्स करियर अकॅडमी मध्ये सैनिकी प्रशिक्षण लाभल्यामुळे आणि त्या वातावरणामुळे त्याचा सर्वांगीण विकास झाला, त्यामुळे तो विविध परीक्षांना पात्र झाला। तशातच त्याने IMU CET ही परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि ती परीक्षा उत्तीर्ण करून तो मर्चंट नेव्हीसाठी सिलेक्ट झाला। आता त्याला MSc ची स्पॉन्सरशिप मिळालेली आहे आणि तो भुवनेश्वरला सेंचुरियन युनिव्हर्सिटी मध्ये आता शिकत आहे। DNS हा कोर्स त्याने ऑप्ट केला आहे आणि खरं म्हणजे DCA मध्ये रहाणे सर आणि त्यांच्या टीमने जे मार्गदर्शन केलं त्याच्यामुळे खूप फायदा झाला, त्याच्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी पण फायदा झाला आणि त्याचा सर्वांगीण विकास झाला। म्हणजे त्याची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हे एक महत्वाचा घटक आहे। DCA मधून तो 4 वर्ष जे शिकला, 9वी पासून तो DCA मध्ये होता, त्याच्यामुळे इथे स्पोर्ट्स, अभ्यास आणि त्यातल्या त्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या सगळ्या गोष्टी कव्हर झाल्या आणि तो त्यामुळेच हे यश संपादन करू शकला। नमस्कार। Jai Hind everyone, my name is Anushka Mahesh Jadhav and I have been recommended from 1FSB Dehradun and this was my second attempt and from since childhood I always wanted to become a pilot, but that time I was not aware about defense forces and all, but as I grew up and I got to know about NDA and luckily that time NDA was also open for girls, so that time only I decided to join NDA. And from one of my brothers I got information about this Defense Career Academy, so without thinking much I immediately joined DCA and now I feel that my decision of joining Defense Career Academy was totally worth it, because DCA not only gave me DCA not only helped me in my academics, but it also helped me in shaping my personality, as well as it included increasing my discipline,
also it instilled sense of responsibility in myself, and also it instilled courage in me. So that's all DCA gave me, and not only about teachers but also CEO sir, director sir, and all my wardens and all the staff members helped me a lot in my preparation. Because of them only I am whatever I am here today. It's all because of them only. Thank you. मी महेश जाधव, माझी मुलगी अनुष्का हिला मी 11वी-12वी मध्ये NDA साठी डिफेन्स करिअर अकॅडमी मध्ये मी तिला घातलं होतं. तिनं चांगल्या प्रकारे हे संपादन केलं. डायरेक्ट सर, CO सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने हे संपादन केलं. तिनं रिटर्न परीक्षेमध्ये हे संपादन केलं. असं SSB मध्ये पण हे संपादन केलं. आता ती एअरफोर्ससाठी जॉईनिंग झालेली आहे आणि या सर्व सदस्य सरांचं मार्गदर्शन तिला उच्च प्रकारे लाभल्यामुळे तिने हे संपादन केलं. जय हिंद, नमस्ते. I am YV Krishna Reddy, and she is my wife Govardhini, and my son name is Karthik Vihan Reddy. He studied here from 9th class to PUC second year. He got he got volleyball state level first, and in national level he qualified. And in Tolani he got a marine engineering college seat, and the college is very nice here. The environment is nice, food facilities are nice, and the teaching staff is very good here. And in the playway method they will teach everything, and the students also they show interest to study here. And that's what each and every student want, and the parents also want the student to be to study happily. And okay. Good morning everyone, myself Jai Santosh Sake from Ahilyanagar. Today I am here to express my gratitude towards all the DCA staff, teachers and mentors for being a key role in my NDA written exam. The journey to my DCA starts after the completion of my 10th board exams. I have a crystal clear thought of joining the armed forces, but requires a path and a proper guidance. Joining the Defense Career Academy gives me all these things. With that, this only not train me about regarding the NDA written exam, but also with this daily physical exercises, routine and all bring the core strength in me. I would like to thanks all the staffs, teaching and non-teaching staffs of the Defense Career Academy, including all my teachers, mentors and the wardens. With that also, I would also like to thanks the director of the institute, Dr. Kedar Rane sir, CEO, Uddhav Takle sir. Thanks to all. Thank you. नमस्कार, मी सपना अनिल मस्के, हर्षलची आई. हर्षल हा DCA मध्ये इयत्ता 11वी आणि 12वीला इथे शिकत होता. तो इथनं इयत्ता 12वी मध्ये पास झालेला आहे आणि त्यांनी NDAची रिटर्नही चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण झालेला आहे. तसेच DCAचं वातावरण खूप चांगलं आहे. DCA मध्ये मुलांचा विकासावरही फार छान लक्ष दिलं जातं. मुलं इथे छान घडतात आणि इथल्या शिक्षकांचे आभार मानू इच्छितो आम्ही. तसेच इथले डायरेक्टर रहाणे सर, तसेच PRO सर, सर्वांचं सहकार्य खूप छान लाभलेलं आहे. वर्ग शिक्षक बोडके सर, त्यांचंही खूप सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. आणि आज हा राजमाता जिजाऊ पुरस्कार हा जो मिळालेला आहे, हा माझ्या आयुष्यातील खूप महत्त्वाचा आणि मौल्यवान असा पुरस्कार माझ्या मुलामुळे मला आज मिळालेला आहे आणि तो DCA मुळेच शक्य झालेला आहे. तरी धन्यवाद. First of all, thank you very much to DCA for this incredible award to my son Harsh for his remarkable achievement in NDA exams. Earlier, we were not very much leaned towards the defense services, but after joining the DCA Academy, Sambhajinagar, he is very much become confident to join the defense services, and accordingly work very hard to pass the NDA exams. I am very thankful and grateful to the management of DCA Academy, their teachers and principals and all staff. Thank you very much. क्लास 11th मध्ये मी DCA जॉईन केली. खरा
खरं मला तर हॉस्टेल लाईफ एक्सपिरियन्स करायचं होतं, ह्या नादाने मी DCA जॉईन केली. पण डिसिप्लिन आणि डिफेन्स फोर्सेसचा डिसिप्लिन बघून माझी इच्छा झाली की NDA मी पण क्लिअर करावा. आणि त्या अर्थानं मी प्रिपरेशन चालू केलं. माझं मॅथ्स आणि माझं गॅट खूप वीक होतं इनिशियली, पण DCA आणि DCAच्या स्टाफने मला खूप मदत केली आणि त्यानंतर माझं हे सगळं सब्जेक्ट स्ट्रॉंग झालं आणि शेवटी मी NDA क्लिअर पण करू शकलो आणि शेवटी रेकमेंड पण झालं. थँक्यू. माझं नाव रतन धोंडीबा लाटे. माझ्या मुलाचं नाव आदित्य रतन लाटे असून 2 वर्षापासून माझा मुलगा या DCA अकादमीमध्ये शिकत असल्यामुळे भरपूर उन्नती झालेली आहे. तरी पण हे म्हणजे एक्झाममध्ये पास झालेला आहे डिफेन्स करियर अकादमीमध्ये. आणि अग्निवीरची परीक्षा आता बाकी आहे, फिजिकल. सगळ्याला धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव आदित्य रतन रहाटे. माझ्या वडिलांचे नाव रतन धोंडीबा रहाटे. मी DCA मध्ये 2 वर्षापासून प्रशिक्षण घेत आहे आणि माझ्याकडून अग्निवीरची एक्झाम क्रॅक झालेली आहे. जे काय अग्निवीरच्या एक्झामसाठी नॉलेज लागत होतं ते DCAने मला प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे आता फिजिकल बी DCA माझे घेत आहे. नमस्कार, मी दत्तात्रय जगदीश सीताफळे, राहणार चिखली, जिल्हा बुलढाणा येथील रहिवासी असून माझा मुलगा गौरव दत्तात्रय सीताफळे 2021-22ला डिफेन्स करियर अकॅडमीला ॲडमिशन घेतली होती 11वी-12वीला. आणि त्या 11वी-12वीमध्ये तो जो घडला तो डिफेन्स करियर अकॅडमीमुळे घडला. आणि त्यामुळे त्यांनी जी एक्झाम दिलेली आहे त्या एक्झाममध्ये सुद्धा तो पास झाला आणि तो सध्या SSRला मेडिकल असिस्टंट म्हणून कुलाबा अश्विनी हॉस्पिटलला कार्यरत आहे. आणि त्याबद्दल मी सर्व डिफेन्स करियर अकॅडमी यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि जे कर्मचारी वृंद आहे त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. त्यामुळे मी सामान्य कुटुंबातला माणूस असून, शेतकरी कुटुंबातला माणूस असून तो जो घडवला गेला तो फक्त डिफेन्स करियर अकॅडमीमुळे घडला आणि त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. अभिनंदन.